বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে 9 বার তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি, কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে পৌঁছয় ইডি। ঘণ্টা দুয়েকের তল্লাশির পর রাত 9টা নাগাদ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে ইডি। এদিকে কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তারের পরেই তার বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আপ কর্মী সমর্থকরা। গোটা রাজধানী জুড়েই চলে প্রতিবাদ দলীয় কর্মী সমর্থকদের, এবং আজকের ছবিও আপনাদের আমরা দেখিয়েছি, একই ছবি কার্যত দিল্লিতে। আজ এই মুহূর্তের সরাসরি ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। আপের কর্মী সমর্থকরা তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাদেরকে তোলা হয়েছে গাড়িতে এবং পুলিশ টেনে তুলছে তাদের এবং সেখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। एकदम खमसे होंगे, पूरे होंगे। जनता हमारे साथ है, देश देख रहा है, देश देख रहे हैं। अरविंद देखते हैं जोर कितना था, बाजुए कातिल में है। हम भी आज यहीं पे और तू भी यहीं पे। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর সরব আপ কর্মী সমর্থকরা তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, বাগবিতণ্ডা, তাদেরকে টেনে গাড়িতে তোলা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি সরাসরি। ধাক্কা দিয়ে রীতিমতো গাড়ির ভিতর ঢোকানো হচ্ছে আপ কর্মী সমর্থকদের। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। দিল্লির ছবি এই মুহূর্তে আপনাদের আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি। আপনারা জানেন বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। দেশে প্রথম কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং তারপর কিন্তু রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন আপ কর্মী সমর্থকরা। तानाशाही है जो केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। কেন্দ্রকে তানাশাহির সরকার বলে তোপ দাগছেন আপ কর্মী সমর্থকরা। সেই ছবি সরাসরি বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা। এই বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীরও। देश में लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है, तानाशाही चरम पे है। আপ কর্মী সমর্থকদের বক্তব্য, সামান্য প্রতিবাদ করার ক্ষমতা এই দেশের বিরোধীদের নেই, এমনটাই বক্তব্য তাদের। দিল্লির ছবি এই মুহূর্তে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আপ কর্মী সমর্থকরা, তাদেরকে ঠেলে গাড়ির ভেতর ঢোকাচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা, এবং সেই ছবি আপনাদের সরাসরি আমরা দেখাচ্ছি। नहीं चलेगी, नहीं। तानाशाही का अंत होगा मोदी सरकार की। কেন্দ্রীয় সরকারকে তানাশাহির সরকার বলে তোপ আপ কর্মী সমর্থকদের সুর চড়া করেছেন তারা। প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর। প্রতিবাদে সরব আপ কর্মী সমর্থকরা। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি দিল্লি থেকে মনীশ কুমার শুক্লা। মনীশ, ইতিমধ্যেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আপ কর্মী সমর্থকরা। দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা, যেখানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী তার যোগদান করার কথা রয়েছে, এবং এই মুহূর্তে যা ছবি একেবারে কেন্দ্রীয় সরকারকে তানাশাহির সরকার বলে তোপ দাগছেন তারা। কি ছবি এই মুহূর্তের? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो काफी एग्रेसिव हो गई है। और दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही विरोध प्रदर्शन करने की बात कही थी। মনীশ, তুমি सঙ্গে থাকো, আমরা এই মুহূর্তে শুনবো আপ কর্মী সমর্থকরা তারা কি বলছেন। और केजरीवाल डालेंगे, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। मारपीट, डंडे, लाठी चलाए जा रहे हैं। ये देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में। मेरे देश के लोगों, इस लोकतंत्र को बचा लो, ये तानाशाह मोदी देश को बर्बाद कर देगा। तानाशाही चरम पे है। देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, लोगों पर लाठियां चलाई जा रही है, लोगों को पीटा जा रहा है। तानाशाही का अंत होगा। আপনারা শুনছেন আপ কর্মী সমর্থকরা তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে তানাশাহির সরকার বলে তোপ দাগছেন, বলছেন লোকতন্ত্রের বিনাশ ঘটাচ্ছে মোদী সরকার। আমাদের প্রতিনিধি মনীশ কুমার শুক্লা টেলিফোন লাইনে রয়েছে। মনীশ, जी बिल्कुल, जिस तरह मैं बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी और एग्रेसिव होती नजर आ रही है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में इस समय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के कई नेता समर्थक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, और लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। और आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है
है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से है। जो उनको समन भेजे गए थे वो असंवैधानिक थे और उनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी करना असंवैधानिक है। तो निश्चित तौर पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी सरकार पर, बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ईडी स्वतंत्र संस्था है, वो अपने नियम के मुताबिक काम कर रही है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस समय हम देख सकते हैं कि जो आईटीओ का इलाका है वहां और आसपास ईडी मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धारा 144 लगी है और कहीं भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आईटीओ मेट्रो को शाम को 6 बजे तक बंद किया गया है ताकि जो बड़ी संख्या में समर्थक हैं वो कोर्ट के पास ना पहुंच पाएं। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच में पीएमएलए कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। সময় তাকে আদালতে তোলা হবে। মানিশ, আরো একটি বিষয়, যেখানে লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারি একটা রাজনৈতিকভাবে ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ অবশ্যই। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়া জোটের ভূমিকা ঠিক কতটা থাকছে? কারণ ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই বিক্ষোভে শামিল হওয়ার কথা বলেছেন এবং অন্যান্য নেতৃত্বরা, বিজেপি বিরোধী নেতৃত্বরা যারা ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে রয়েছেন তারা কি বলছেন? देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो इंडिया अलायंस है वो एकजुट होता दिखाई दे रहा है और हमने देखा था कि पिछले दिनों इंडिया अलायंस किस तरह बिखरता हुआ दिख रहा था। और अगर बात करें अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तो सभी विरोधी जो पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस में हैं उन्होंने इस गिरफ्तारी का विरोध दर्ज किया है, इसकी निंदा की है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब से कुछ समय बाद राहुल गांधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच सकते हैं, उनके परिवारजनों से मुलाकात करने जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, उनके घर जाने वाले जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, उनको बंद किया गया है। किसी भी व्यक्ति को उस रास्ते में जाने की इजाजत नहीं है। जो उनके आवास में सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर हैं उनका आई कार्ड देखने के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी उनके आवास के जाने की कोशिश करेंगे तो उनको रोका जाएगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी किसी न किसी तरह की उनके घर जाके उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद वो वहां पहुंचेंगे, भले ही उनको पुलिस रोके और उसके बाद वो वहां, लेकिन एक मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी उनके आवास पर मिलने पहुंच रहे थे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है और चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे अन्य विपक्षी नेता हो, उन्होंने इसकी निंदा की है। और चुनाव का समय है और निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी चुनावी जंग में है, चुनावी मैदान में है, तो अरविंद केजरीवाल के बिना वो कैसे चुनावी प्रचार करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक उनके मुख्य स्टार प्रचारक हैं। और यही वजह है कि उनके बिना आम आदमी पार्टी को काफी दिक्कत महसूस होगी। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अब जो अगर पद की बात करें तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो निश्चित तौर पर घटनाक्रम काफी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली का जो एक पारा है, राजनीतिक पारा है, मनीष, এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয়, রাহুল গান্ধী তিনি আজ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন, সেই বিষয়ে কি আপডেট আছে তোমার কাছে? इस मामले में जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कांग्रेस के कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनके परिवार वालों से बात की है और ये भी बताया है कि अब से कुछ देर बाद राहुल जी भी आपके घर पे आएंगे और उनके घर से ये क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये सारी चीजें व्यवस्था की जा रही हैं कि राहुल गांधी उनके परिवार से मिल सके, उनकी जो पत्नी है उनसे मिल सके, उनके जो बच्चे हैं उनसे मुलाकात कर सके, परिवार से मुलाकात कर सकें। लेकिन जिस तरह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं तो इस बात की संभावना है कि राहुल गांधी जब अरविंद केजरीवाल के घर के लिए निकलेंगे तो उनको रास्ते में ही रोक लिया जाएगा। क्योंकि अब से कुछ समय पहले जब गोपाल राय जो मंत्री हैं বেশ दिल्ली বেশ सरकार মনীষ, में, তুমি সঙ্গে থাকো। ইতিমধ্যে আপ কর্মী সমর্থকদের তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই ছবি আপনাদের সরাসরি। किया उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हम उनकी बहन है, हम उनकी बेटी है, हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। দেখতে পাচ্ছেন ছবি সরাসরি দিল্লির, একেবারে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপ কর্মী সমর্থকদের।
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারিতে প্রতিবাদে সরব আপ কর্মী সমর্থকরা চ্যাংদোলা করে রীতিমতো টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপ কর্মী সমর্থকদের। বিক্ষোভ স্থল হটানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা দিল্লি পুলিশের। কেপি মৌরিয়া কি বলছেন এই গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে শোনাবো। कांग्रेस पूरे देश के अंदर पराजय के कगार पर खड़ी है। वह कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फैसला तो लोकसभा चुनाव 2024 में हो जाएगा, जब कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार एक दानव है, इस देश को विकसित देश नहीं होने दिया। भ्रष्टाचार इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस भ्रष्टाचार ने जैसे एक शिष्टाचार का रूप धारण कर लिया कि जैसे पैसा लेकर के कोई काम करना या सत्ता में रह कर के रिश्वतखोरी करना अधिकार लोगों ने समझ लिया था। जांच एजेंसियों पर आरोप ऐसे लगाते हैं जैसे लगता है कि जांच एजेंसियों को लगातार उनको पीएमओ से, एचएमओ से या बीजेपी ऑफिस से कोई आदेश मिल रहा हो, लेकिन जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच कर रही हैं और जांच में जो दोषी होता है उस व्यक्ति को 10-10 बार नोटिस दी गई। ये सत्ता का अहंकार तो श्री अरविंद केजरीवाल जी को था कि अगर नोटिस दी गई तो जाके जवाब दे दो, और अगर ईडी गलत है तो न्यायालय में जाओ। अगर आपको न्यायालय से भी रिलीफ नहीं मिल रही है, उसके बाद ईडी पर दोष लगाओगे, चुनाव हार जाओगे तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाओगे, ईवीएम पे आरोप लगाओगे। कोई इतने बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं हो जाएं और उस पर कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच हो, एनआई जांच हो तो उस पर आरोप लगाओगे। सेना पराक्रम दिखाए, एयर स्ट्राइक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे तो उस पर सवाल उठाओगे। আপনারা শুনছিলেন কেপি মৌরিয়ার বক্তব্য। অন্যদিকে সরাসরি দেখাচ্ছি দিল্লির ছবি। দিল্লিতে গোটা দিল্লি জুড়ে আপ কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ, রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা, সেই ছবি সরাসরি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারিতে প্রতিবাদে সরব আপ কর্মী সমর্থকরা তারা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, বাকবিতণ্ডা। পুলিশ তাদের ধরে হিচড়ে টেনে সেখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন, চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তুলছেন পুলিশ। এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আপ কর্মী সমর্থকরা। রয়েছে দিল্লি পুলিশের একাধিক কর্তারা। দেখতে পাচ্ছেন টেনে হিচড়ে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপ কর্মী সমর্থকদের। গ্রেপ্তার অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আপনারা জানেন গতকালই গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এবং তারপর বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আপ কর্মী সমর্থকরা। গতকালও একই ছবি দেখেছিলাম আমরা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আপ কর্মী সমর্থকরা। তার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সরব হন তারা এবং তখনও তাদেরকে ঠেলে তুলে গাড়িতে করে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ।